اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں بائبل مقدس کی باتوں پر غور کریں۔ آج کا ہمارا نیا ٹاپک، آج کا ہمارا نیا موضوع، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ میرے عزیزو، آج کی اس جدید دنیا میں، آج کے اس جدید معاشرے میں، جبکہ ہر طرف نفسی کا عالم ہے، ہر انسان جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کسی کو کسی دوسرے کا کچھ خیال نہیں۔ اسی اثنا میں ہر فرد بشر مختلف مشکلوں میں، پریشانیوں میں سے گزر رہا ہے اور بہت سی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اور پھر سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ہمیں آ گھیرتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایسے حالات میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے دل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس ہماری اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آئیں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں مل کر۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کا نسخہ موجود ہے، ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ مل کر ان آیات مبارکہ کو ضرور تلاوت کیا کریں۔ مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط ہے اور اس کا 3 نمبر باب ہے اور اس کی آیت 9 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ سو میرے عزیزو، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 9، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، انتظار کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے کہ ہر فرد بشر اپنی بری روشوں سے، اپنے برے کاموں سے توبہ کرے اور ان مشکلوں پریشانیوں سے آزاد ہو جائے۔ لفظ تحمل جو ہے بائبل مقدس کے اندر، جب ہم بائبل مقدس کا پہلے حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں صرف 2 دفعہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور جب ہم بائبل مقدس کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر اسی لفظ تحمل کا ذکر ہمیں 16 مرتبہ ملتا ہے۔ ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر لفظ تحمل جو ہے یہ ہمیں 18 مرتبہ اس کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کسی بھی فرد بشر کی ہلاکت میں خوش نہیں ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر فرد بشر اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئی انسانیت میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو۔ میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ تلاوت کریں۔ بائبل مقدس کے پہلے حصے میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 33 نمبر باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ 11، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: خدا فرماتا ہے تو ان سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم کہ شریر کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ شریر کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے، یعنی کہ توبہ کرے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ،
तुम अपनी बुरी रवश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे। सो मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी फर्द बशर जिसको उसने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपनी शक्लो शबी पर तख्लीक किया है, वो नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां हलाकतों का सबब हों। मेरे अजीजों, उसने तो हम सब की सूरत अपने हथेली पर खोद रखी है। वो चाहेगा कि मेरे बेटे और बेटियां जो है वो हलाक हो जाएं। वो तो इंतजार करता है, वेट करता है। खुदा की ये चाहत नहीं है, बल्कि खुदा की चाहत क्या है। तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 4 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। वो चाहता है, यानी कि खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सो मेरे अजीजों, उसकी चाहत है, उसकी खुशी है कि शरीर जो है वो हलाक ना हो, गुनहगार हलाक ना हो, कोई फर्द बशर जो है वो हलाक ना हो। ये उसकी खुशी है और उसकी चाहत है कि हर इंसान नजात पाए, और उसकी खुशी है कि हर इंसान सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। और बाइबल बयान करती है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। मेरे अजीजों, आप कैसी भी मुश्किल परेशानी में हैं, बाइबल आपको इनकरेज करती है। खुदा का कलाम आपकी हौसला अफजाई करता है कि आप अपनी तमाम बुरी रविशों से, पुरानी इंसानियत से एक तरफ हो जाए और नई इंसानियत को पहन लें, एक यू टर्न लें, तौबा करें, ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। मेरे अजीजों, मैं यहां पर एक बाइबल मुकद्दस का वाक्य आपके गोशगुजार करना जरूरी समझता हूं। जब हम बाइबल मुकद्दस में यूना नबी के सहीफे का मुतालिया करते हैं तो वहां पर उस नैनवा के लोगों की जो शरारतें हैं वो खुदा तक पहुंची, क्योंकि हर शख्स ने अपना अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने अपने बंदा यूना को वहां पर भेजा कि जा उनसे कह और वहां पर जाकर तौबा की मनादी कर। सो मेरे अजीजों, जब यूना वहां तक पहुंचा तो उसने वहां पर जाकर मनादी की कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे, खुदा तहम्बल करके ठहरा हुआ है, वेट कर रहा है कि तुम अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाओ। आपके पास 40 दिन का टाइम है। सो मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि नैनवा के लोगों ने अपनी बुरी रविशों से वो बाज आ गए, अपने बुरे कामों से वो बाज आ गए। उन्होंने तौबा की, उन्होंने खुदा के हुजूर ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बल्कि अपनी जिंदगी पर वाह वेला किया, रोजा रखा और दुआ में ठहर गए, खाकसार हो गए, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को फरोतन बना लिया। और मेरे चीजों, बाइबल बयान करती है कि जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी तो खुदा ने उस पूरे शहर पर रहम कर दिया। मैं चाहता हूं कि इस आयत मुबारक को हम मिलकर तलावत कर लें। यूना नबी का सहीफा है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, खाकसारी की हालत, इनकसारी की हालत, मेरे अजीजों, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को कहा था बाज आया और उसे नाज़िल ना किया। मेरे अजीजों,
खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, उसकी खुशी ये है कि हर फर्द बशर अपनी बुरी रविशों से बाज आए और तौबा करे और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। मेरे अजीजों, मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 15 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और हमारे खुदा के तहम्बल को नजात समझो। मेरे अजीजों, खुदा अगर तहम्बल करके ठहरा हुआ है तो इस तहम्बल को हमें नजात समझने की जरूरत है कि खुदा हमें मौका दे रहा है कि हम नजात पाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्बल और सब्र की दौलत को न चीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। मेरे अजीजों, खुदा की मेहरबानी, खुदा का तहम्बल, खुदा का सब्र, वो हमें तौबा की तरफ माइल करता है, तौबा के लिए हमें मौका देता है कि हम अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाएं और तौबा करें, यू टर्न लें और खुदा से हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। मेरे अजीजों, आपकी मुश्किल कैसी भी क्यों नहीं, आपकी बदनी बीमारी कैसी भी क्यों नहीं है, आप कैसी परेशानियों में से गुजर रहे हैं, आपके हालात कैसे भी क्यों नहीं है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। खुदा इंतजार कर रहा है आपका कि आप तौबा करें। इससे पहले अगर आपने रब्बाना यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देंदा कबूल नहीं किया तो आज ही तौबा का वक्त है, आज ही तौबा का दिन है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे गास्पल चैनल UOA को दुआओं में याद रखें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे।